So in the last class, we discussed about the kinds of endorsement. So in today's class, we are going to complete this topic, right? So who is going to tell me what is endorsement in black? Raise your hand. What is the meaning of endorsement in black? Blank. Endorsement in blank. Yes, Priya. Ma'am, this is a type of endorsement in which the endorser only sign their name and don't specify to whom they endorse that document or instrument. Sorry. Yes, so that is a blank endorsement. If it is there is only a signature is present, right? The signature is in, but the name of the endorsee is not written in that, and the only signature and the person who is the endorsee, they can do the further endorsement, or we can say negotiation, right? In the case of the endorsement in blank, but endorsement in blank can be converted into the restrictive endorsement as well, right? Yeah, endorsement in full, it can be converted. Yes, who is going to tell me about the endorsement in full? Yes, Priya. Yes, Priya. Ma'am, in endorsement in full, the endorsee sign his name and also specify to whom they endorse that instrument. Okay. Yes. What is the conditional endorsement? What is conditional endorsement? Raise your hand. Conditional endorsement क्या होता है? Priya? Yes, ma'am. What is conditional endorsement? Ma'am, actually, I have confused in conditional and restrictive endorsement. Okay, let me tell you what is a conditional endorsement. So in the conditional endorsement, the endorser of the negotiable instrument, by expressing his words in the endorsement, make his liability or the right of endorsee to receive the amount due to thereon. मतलब यहाँ पर जो इंडोर्सर है, जो भी पर्सन है जो इंडोर्स कर रहा है अपनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई कर देगा. व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन देयर विल बी? दैट दे कैन स्पीक लाइक दिस, that the payee if he returns from Mumbai. मतलब कि यहाँ पर अगर कोई भी पेमेंट जो क्लियरेंस की बात हो रही है कि इंडोर्समेंट अगर कोई इंडोर्सर कर रहा है इंडोर्सी को, तो यहाँ पर इंडोर्सी जो है वो पेमेंट तभी रिसीव कर सकता है अगर कोई इवेंट या कोई कंडीशन जो अप्लाइड है वो फुलफिल हो तब. ठीक है, जैसे इंडोर्सर ने उसमें यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि अगर वो मुंबई से आएगा तब उसको पेमेंट करो, सी को पेमेंट करो जब सी जो है वो मुंबई से वापस आता है तो. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन जो इंडोर्सर है एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड, यानी अपने शब्दों से अपने वर्ड से वो क्या करेगा, इस चीज को एक्सप्रेस करेगा दैट देयर इज अ कंडीशन दैट द इंडोर्सी विल गेट द पेमेंट ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज अप्लाइड या फिर दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. ठीक है, तो इसको कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, वो ma'am. समझ में आया? यहाँ पर अगर कोई इवेंट ऐसा होगा जो कभी भी वो पूरा ही ना हो, तो सम इवेंट्स आर लाइक दैट दे कैन नॉट बी एवर हैपनिंग. तो ऐसे एंडोर्समेंट को हम कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट, यानी इट इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट. लाइक द इवेंट इज सेइंग कि लाइक पे सी व्हेन ही और शी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई. अगर वो मुंबई से आते हैं, अगर वो मुंबई गया ही नहीं तो आएगा कब? दैट इवेंट कैन बी पॉसिबल? No, ma'am. So sometimes this event, the condition is very much unrealistic or the conditions are vague. ठीक है, कई बार specified और कई बार वो event होता ही नहीं है. So that is conditional endorsement when we are putting the condition at the time of endorsement, and the endorsee will pay or get the amount on that after completion of that condition or that event. Event के होने के बाद ही वो payment जो है वो endorsee को मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पर सच एन इंडोर्सर गेट्स द फॉलोइंग राइट. अब कुछ इंडोर्सर्स के पास राइट है. He may make his liability on the instrument condition on happening of the particular event. He will not liable to the subsequent holder if the specified event does not take place. ठीक है, तो इंडोर्सी जो है इसे कंडीशन में they can sue the other parties to the instrument even before the particular event take place. तो यहाँ पर लाइबिलिटी जो है इंस्ट्रूमेंट का जो कंडीशन का
they are basically giving to the endorser. Endorser चाहे तो they have right to use the condition things, and he will not liable for the subsequent holder. But उस subsequent holder के लिए मतलब आगे अगर वो मतलब होल्डर के लिए वो liable नहीं है आगे के होल्डर्स के लिए, who is basically going to take that endorser endorse that negotiable instrument. ठीक है. अगर इंडोर्सी चाहे तो ऐसे सिचुएशन में दे कैन केस मतलब इन सच अ केस दे कैन सू कर सकते हैं दूसरे पार्टीज को, ठीक है, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट पहले से है और द इवेंट होने से पहले दे कैन सू इवन द पार्टीज इफ देयर इज अ कंडीशन अप्लाइड. They can sue the parties if that event is vague or unrealistic. So we can say that the endorser has right to put the condition at the time of the endorsement, but he is not liable for the subsequent holder. यानी अगर आगे चल के उसको कोई और होल्ड कर रहा है तो उसके लिए वो liable नहीं है. That endorser is not liable for the subsequent holders, but yes, he is liable for the person whom he is endorsing the thing, endorsing the negotiable instrument with condition. ठीक है. और इंडोर्सी अगर चाहे केस भी कर सकता है अदर पार्टीज के ऊपर अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो इवन वो कंडीशन के पूरा होने से पहले, द इवेंट के पूरा होने से पहले दे कैन सू द पार्टी. एंड एक और चीज जो इंडोर्सी है, he may make the right of endorsee of the instrument conditional on the happening of a particular event. और कुछ पर्टिकुलर इवेंट के होने पर ही ये पेमेंट होगा, ये भी एंडोर्सर का राइट है कि दैट दे कैन बेसिकली राइट दूस कंडीशन. पहले वाले पॉइंट आई है जैसे एग्जांपल में पे सी इफ ही रिटर्न्स फ्रॉम मुंबई यानी मुंबई से जब सी वापस आए तब उसको पेमेंट करो. तो यहाँ पर जो सी है, द सी जो है वो गेट्स द राइट टू रिसीव पेमेंट व्हेन दैट पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग. अगर वो पर्टिकुलर इवेंट होगा तभी उस सी को पैसा मिलेगा इफ ही रिटर्न्स फ्रॉम मुंबई. इफ द इवेंट डज नॉट टेक प्लेस द एंडोर्सी कैन नॉट सू एनी ऑफ द पार्टीज. यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दिया गया है कि इवेंट के होने से मतलब उस कंडीशन के लगाने से पहले, उस इवेंट के होने से पहले इफ यू वांट यू कैन सू द एंडोर्सी कैन सू द पार्टी. बट अगर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में कोई कंडीशन लगा है और वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुआ तो इंडोर्सी तब उस पर केस नहीं कर सकता इंडोर्सर पे. मतलब यहाँ दो चीजें कही गई हैं कि जो लाइबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कंडीशन जो है वो हैपन होगा, कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा. he will not be liable to the subsequent holder. subsequent holder का मतलब जो आगे चलने वाले होल्डर्स हैं उनके लिए the endorser is not liable. ठीक है. and endorsee जो है that endorsee can even do the they can sue. endorsee जो है वो sue कर सकता है लेकिन इवेंट के पूरा होने से पहले. लेकिन यहाँ पर एक और चीज बोला गया है कि जो endorsee होगा इंस्ट्रूमेंट का, जो कंडीशन जो endorsee होगा इंस्ट्रूमेंट का जिसके ऊपर कंडीशन लगाया गया है, जैसे वही कि पे सी इफ ही रिटर्न्स फ्रॉम द मुंबई, तो सी जो है उसको पेमेंट तभी मिलेगा जब वो मुंबई से वापस, अगर वो मुंबई से नहीं आया तो इंडोर्सी जो है वो किसी भी पार्टी को सू नहीं कर सकता. इफ द इवेंट डज नॉट टेक प्लेस, इवेंट अगर वो नहीं हुआ तो वो किसी भी पार्टी को सू नहीं कर सकता है. लेकिन इवेंट होने से पहले ही कैन सू. सू का मतलब होता है केस करना. आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. बस इन कंडीशनल एंडोर्समेंट डू नॉट मेक द इंस्ट्रूमेंट नॉन ट्रांसफरेबल. याद रखिएगा कि कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट जो है, एंडोर्समेंट जो है वो कभी भी आपके इंस्ट्रूमेंट को नॉन ट्रांसफरेबल नहीं बनाएगा. रिस्ट्रिक्टिव लेकिन बना देता है ना आपके बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नॉन ट्रांसफरेबल. बट कंडीशनल जो है दैट दे कैन नॉट मेक द इंस्ट्रूमेंट नॉन ट्रांसफरेबल. समझ में आया डिफरेंस? एक डिफरेंस समझ में आया कि रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में आपका जो भी एंडोर्समेंट होगा इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव में. बट इन द केस ऑफ द कंडीशनल एंडोर्समेंट दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर. तो नॉन ट्रांसफरेबल वाला सिचुएशन कंडीशनल में नहीं होगा. ठीक है. और इस तरीके के ज्यादातर एंडोर्समेंट जनरली यूज नहीं होता है. किस टाइप की? कंडीशनल एंडोर्समेंट वाला टाइप. ठीक है. चलिए रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में जो एंडोर्सी है, जनरली जो एंडोर्सी होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, is fully competent to negotiate it further, but section 50 permits restrictive endorsement which take away the negotiability of such instrument. Negotiability of such instrument, it means that it cannot be transferred to the further party. देखो जो भी endorser है, जैसे एग्जाम्पल में अगर there is a two person A and B and A is the endorser and the B is endorsee,
टेक इट एज एग्जाम्पल कि ए जो है वो इंडोर्सर है और बी जो है वो इंडोर्सी है। तो यहाँ पर जो बी है उसके पास पूरा राइट होता है कि दैट बी जो है वो फर्दर निगोशिएट कर दे किसको, आपके इंस्ट्रूमेंट को। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव आपका जो इंडोर्समेंट होगा ये कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबिलिटी को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ट्रांसफरेबिलिटी को रोक देता है ना। सो इसमें यहाँ सेक्शन 50 में आपके सेक्शन 50 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, here in under the section 50 the restrictive endorsement is saying that it is taking away the negotiability of the instrument. जो endorsement होगा, the endorsement may by express words restrict or exclude the right to negotiate or may merely consude the endorsee an agent to endorse the instrument or receive its content for the endorser or for some other specified person. तो यहाँ पर जो endorsement होगा वो basically अपने word से जो endorser होगा वो एक्सप्रेस कर देगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर टू द अदर पार्टीज, बट यस इफ द इंडोर्सी इज बेसिकली यूजिंग द एजेंट, और कोई एजेंट है जो इंडोर्सी के बिहाफ में काम कर रहा है, तो उस एजेंट को ट्रांसफर हो सकता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर टू द फर्दर पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में किस तरीके से आप किस तरीके से रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कर सकते हैं, किस तरीके से, और वो किस तरीके से लिखा होगा, हाउ दैट is going to be mentioned. So there are some examples of it. If B endorses an instrument payable to bearer as follows, the right of C to be further negotiated is excluded. यानी C जो है वो endorsement या negotiation नहीं कर सकता है इंस्ट्रूमेंट का, और वो कैसे लिखा होगा देखिए। फर्स्ट वन इज पे द कंटेंट टू C only, यानी सिर्फ C को पैसा मिलना चाहिए। तो B ये चीज लिख के मेंशन करके दे रहा है कि जो बियरर है C जो है वो आगे उसको निगोशिएट, उस इंस्ट्रूमेंट को आगे ट्रांसफर ना कर पाए, उसका जो ट्रांसफरेबिलिटी राइट है दैट इज एक्सक्लूडेड बाय द टर्म्स और वर्ड्स व्हिच इज रिटन ओवर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड हाउ इट इज रिटन, द फर्स्ट पॉइंट इज पे द कंटेंट टू C ओनली, सिर्फ C को पेमेंट करो। ठीक है, सेकेंड पे C फॉर माई यूज, मतलब C को मेरे यूज के लिए उसको पे करो। ठीक है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज पे C और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ B, यानी B के अकाउंट से C के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। ठीक है, द विदिन मस्ट बी क्रेडिटेड टू C, मतलब C को सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। सो दिस इज हाउ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें मेंशन होंगी, और ये कहीं ना कहीं राइट जो है, किसका राइट, ट्रांसफरेबिलिटी राइट जो है उसको खत्म कर देगा। लेकिन अगर इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, बाकी और भी टर्म्स में बता रही हूँ, अगर इस टाइप से लिखी हुई है तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट नहीं होगा। कैसे लिखा होगा तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट नहीं होगा, पे C, यानी C को पे करो। अब पे C लिखा हुआ है तो यहाँ पर दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, एंड हियर we can do the further negotiation or we can transfer the negotiable instrument. So pay C. Next one is pay C value in account of X bank. So in this kind of term is mentioned, then this is not a restrictive endorsement. Clear हो गया? यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Just wait for a minute. Let me tell you that an endorser of the negotiable instrument may by express words in the endorsement exclude his own liability thereon. For example, if R endorses a check as follows, pay to X or order at his own bank. मतलब यहाँ जो endorsement stands recourse है, ये कहता है कि अगर endorser जो है negotiable instrument का who is transferring the negotiable instrument to the endorsee. So endorser is always that person who is basically transferring the title to the endorsee. The endorser जो है the negotiable instrument का, वो मे बी अपने वर्ड से एक्सप्रेस करेगा endorsement का, और अपनी खुद की लाइबिलिटी को उससे साइड कर लेगा, मतलब he want to exclude his own liability once he will transfer the negotiable instrument. ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या है कि देखिए ये सेक्शन 52 में कवर होता है आपका endorsement stands recourse. For example, if R endorses a check as follows, अगर R जो है वो चेक endorse कर रहा है, चेक दे रहा है, endorse कर रहा है, पास कर रहा है, so pay to X or order at his own risk.
मतलब यहाँ अगर इस टाइप की लाइन लिखे तो दिस इज द केस ऑफ एंडोर्समेंट स्टैंड्स रिकोर्स। हियर द पर्सन, यहाँ पर जो आपका इंडोर्सर है, दैट पर्सन इज एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ, ही इज बेसिकली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर transferring the negotiable instrument. Once he is transferring that, the person is excluded from the responsibility or liability of that particular negotiable instrument. So ये होगा आपका endorsement stance recourse. So for that, what he have to do, he have to write something on the at the time of endorsement. And what he is going to write, he can write in the following ways. First one is pay to X or order at his own risk. मतलब X को पे कीजिए और उस वो अगर किसी और को ऑर्डर कर रहा है या किसी को वो ऑर्डर टू में कन्वर्ट हो रहा है, टू ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज हिज ओन रिस्क, मतलब X का खुद का रिस्क है, R इज नॉट लाइबल फॉर दैट। पे टू C विदाउट रिकोर्स टू मी, मतलब C को पे करो लेकिन बिना मुझसे इंटरफेरेंस के, बिना मुझे पूछे, रिकोर्स टू मी। सो इन दिस काइंड ऑफ टर्म व्हेन द वर्ड रिकोर्स or the word risk is used in the time of endorsement, that is basically excluding the liability of the person who is doing the endorsement work. So I guess this point is clear to all of you. Clear हो गया? अभिजीत? Yes, ma'am. समझ में आया? Okay. So here जो R है वो liable नहीं है X के लिए, ठीक है? किसी भी subsequent में, endorses में, if the bank dishonors the check subsequently, he is not liable. They may sue any party prior to such endorser. और उस endorser से पहले अगर कोई भी और मतलब endorser से पहले कोई और भी person या कोई और पार्टी रहा है तो वो उस चीज के लिए liable हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A ने पास किया, A ने ट्रांसफर किया B को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब B जब C को ट्रांसफर कर रहा है तो इसने अपने आप को उससे एक्सक्लूड करने के लिए एंडोर्समेंट किया, और इस एंडोर्समेंट में दे आर यूजिंग दिस रिस्क एंड रिकोर्स वाला टर्म। तो यहाँ पर अगर C को कोई प्रॉब्लम है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू सू A और दे आर गोइंग टू आस्क A, बट B is excluding himself from that whole endorsement process. If any other party is there, they can basically sue them. But if it is about the person who is endorsing the instrument, he is excluding himself from that. If यहाँ पर देखिए R जो है, he जो R है will not be liable. R यहाँ पर endorse कर रहा है, R जो है वो liable नहीं है X के लिए किसी भी subsequent में, कोई भी reason में endorsees के लिए अगर bank honor भी कर देता है चेक को तब भी he is not liable. They may sue any party prior to such endorser. यानी इस endorser से पहले जो भी prior party थी, जैसे यहाँ पर पार्टी कौन थी, A पार्टी थी endorsement से पहले, तो कोई भी अगर प्रायर पार्टीज है तो उस पार्टी का लाइबिलिटी आ जाएगा, लेकिन द पर्सन हु इज डूइंग द एंडोर्समेंट वर्क, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट होल प्रोसेस। सो आई गेस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? May sue any party prior to such endorser, but if an endorser who so excluded his liability afterward becomes the holder of the instrument, all the intermediate endorsers are liable to him. यानी बाकी के सारे endorser liable हो सकते हैं, लेकिन जो जिसने ये लिख दिया, मेंशन कर दिया, that person is not liable for that payment. ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, R has excluded his personal liability by endorsing the check without recourse. ठीक है, it transfer it to B and B endorses to C. Who endorses it back to R? Thus R shall have right as endorsee against B and C. Who's endorsed the instrument before it came back to R? मतलब कितना भी यहाँ पर endorsement हुआ हो, अगर आपका पर्सन जो एक्सक्लूड कर रहा है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, बाकी अदर जो भी पर्सन है दैट पर्सन और दैट पार्टी इज लाइबल। तो आई गेस दिस एंडोर्समेंट स्टैंस रिकोर्स क्लियर हो गया? I guess this point is clear, right? So let's move toward the next one. सैंस रिकोर्स का मतलब अगर मैं तुम लोग को हिंदी में बताऊं तो ये होता है त्यागना, अगना, ठीक है, त्याग, अपने दायित्व, अपनी लाइबिलिटी को त्याग कर देना, सैक्रिफाइस कर देना, अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को हटा देना, तो दैट इज द सैंस इन रिकोर्स। तो सैंस रिकोर्स आई गेस क्लियर हो गया, इंडोर्समेंट बाय सैंस रिकोर्स।
Okay, next one is the facultative endorsement. What is that? The facultative endorsement जो है, ये endorse जो है, यहाँ पर इंडोर्सी वो पर्सन होगा जिसके नाम से इंडोर्समेंट हो रहा है. लाइक जैसे ए जो है वो बी को इंडोर्स कर रहा है, तो बी जो है दैट पर्सन इज इंडोर्सी एंड ए इज द इंडोर्सर. ठीक है, तो जो इंडोर्सी है must give the notice of dishonor of the instrument to the endorser, but the latter may waive this duty of the endorsee by writing in the endorsement notice of dishonor waived. Endorser remain liable to the endorsee for the non-payment of the instrument. तो फैक्यूलेटेटिव इंडोर्समेंट ये कह रहा है कि जो इंडोर्सी है वो नोटिस दे सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर का. किसको नोटिस देगा? इंडोर्सर को. लेकिन बट द लेटर में वेव दिस ड्यूटी ऑफ द इंडोर्सी बाय राइटिंग इन द इंडोर्समेंट. अपने इंडोर्समेंट में वो इस ड्यूटी को हटाने के लिए लिख सकता है नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड. ठीक है, मतलब डिसऑनर जो है आप हट जाएगा, वेव आउट हो जाएगा. तो इंडोर्सर लेकिन तब भी लाइबल होगा इंडोर्सी के लिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पर जो आपका फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट जो है, आई एम जस्ट वेरी लेस को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. जो फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट है ये एक अंडर राइटिंग है जहां पर इंडोर्सर जो है डेफर करता है अपने प्रिविलेज को टू विच ही इज एंटाइटल्ड. फॉर इंस्टेंस अगर इंडोर्सी जो है सब्जेक्ट टू पुल आउट द डिसरिस्पेक्ट टू द इंडोर्सर and typically inability to pull out with the vindicate the endorser from his risk. ये तो बुक से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया टर्म. तो फैक्युलेटेटिव एंडोर्समेंट का मतलब तो कितना समझ लीजिए कि जहां पर आपके जो इंडोर्सर है वो नोटिस दे सकते हैं अगर उनका पेमेंट नहीं होता है किस चीज का, इंस्टीट्यूट का. तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने ड्यूटी को वेव आउट कर सकता है. इंडोर्सी जो है वो राइटिंग में देगा, मतलब ड्यूटी ऑफ द इंडोर्सी बाय राइटिंग इन द एंडोर्समेंट नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड. ठीक है, मतलब पार्शियल भी दिया हुआ है तो आई गेस देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट का मतलब देखो, इंडोर्समेंट सैनिटरी कोड से अलग है. यहाँ पर आप इंडोर्सी को पहले लिख करके ये चीज दे रहे हो कि लाइक आई एम नॉट लाइबल सो अदर पार्टीज आर लाइबल. इन द फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट जो इंडोर्सी है वो नोटिस दे रहा है कि उनका जो पेमेंट है वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो इंडोर्सी बट द लेटर मे वेव. ठीक है, जो इंडोर्सर है वो मे बी वेव कर सकता है, माफी मांग सकता है कि ड्यूटी ऑफ द इंडोर्सर बाय राइटिंग इन एंडोर्समेंट नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड. ठीक है, यहाँ पर इंडोर्सर लेकिन तब भी लाइबल होगा अगर इंडोर्सी को पेमेंट नहीं मिलता है इंस्ट्रूमेंट से तब. एक मिनट जस्ट वेट कीजिए. इसका मतलब जो दिया है कि फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट में यही होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द सेम थिंग दैट द इंडोर्सी है वो नोटिस देगा, लेकिन इंडोर्सर जो है दैट पर्सन कैन वेव ऑफ वेव ऑफ कर सकता है आपके इसको इंडोर्समेंट को वेव ऑफ कर सकता है. डिसऑनर जो भी पेमेंट अगर नहीं हो रहा तो दे कैन वेव ऑफ, बट स्टिल द इंडोर्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट. तो इसका यहाँ पर यही मतलब है कि जो इंडोर्समेंट हो रहा है जहां पर जो इंडोर्सी है वो अपने लाइबिलिटी को एक्सटेंड कर रहा है, इंडोर्स एक्सटेंड हिज लाइबिलिटी और एबंडेंस सम राइट under the negotiable instrument. And यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है पे ए और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्युलेटेटिव डिस एंडोर्समेंट. यहाँ पर जो एंडोर्समेंट है, जो एंडोर्सर है वो अपनी लाइबिलिटी को एक्सटेंड कर रहा है या फिर अपनी लाइबिलिटी को एबेंडन कर रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम कहते हैं फैक्युलेटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फैक्युलेटेटिव एंडोर्समेंट. यहाँ पर जो पर्सन है या तो वो अपनी लाइबिलिटी को एक्सटेंड करेगा, अगर डिसऑनर हो रहा है चेक का तो दैट पर्सन इज लाइबल. अगर वो चाहे तो वो एबेंडन भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, उस लाइबिलिटी को हटा भी सकता है. लेकिन यहाँ एक टर्म जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट में जो इंडोर्सर है दैट पर्सन विल रिमेन लाइबल टू इंडोर्सी. वो हमेशा लाइबल रहेगा इंडोर्सी के लिए अगर वहां पर इंस्ट्रूमेंट का नॉन पेमेंट हो रहा है. ठीक है, अगर नॉन पेमेंट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का तो द इंडोर्सर विल बी ऑलवेज लाइबल. लेकिन अगर उनका नोटिस है, ये मतलब जो इंडोर्सी है दैट पर्सन इफ ही इज नॉट गेटिंग द पेमेंट द इंडोर्सर विल बी लाइबल फॉर दैट. सो दैट इज फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट. ठीक है, जहां पर इंडोर्समेंट जो हो रहा है वहां पर इंडोर्सर अपनी लाइबिलिटी को एक्सटेंड कर रहा है या अबेंडन कर रहा है अपने कुछ राइट को अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो दैट इज फैक्युलेटेटिव इंडोर्समेंट. सैनिटरी कोर्स क्लियर है सबको? सैनिटरी कोर्स क्लियर है? टाइप्स क्लियर हो गया?
There is one more term, that is a partial liability, partial endorsement. I guess I need to explain it, or you all are able to understand that what is in the partial endorsement. Partial endorsement, full endorsement, conditional endorsement, that all the terms are clear. Yes, ma'am. Okay. Partial endorsement में याद रखिएगा, the endorsement that is basically done when the half of the payment is already received. So partial endorsement never done, कभी भी वो आपके half payment मिले बिना नहीं होगा. Like for example, if A is, let me explain it. Like यहाँ पर देखिए कि अगर A जो है, that person is endorsing the instrument to B, ठीक है. A जो है वो B को इंडोर्स कर रहा है, B इज द इंडोर्सी, तो ये इंडोर्सी है, और A जो है ही इज द इंडोर्सर, और A जो है इसने B को इंडोर्स किया, मान लीजिए 50,000 रुपीज का पेमेंट, तो 50,000 रुपीज का पेमेंट जो था देना था आपको A को, B को देना था, तो 50,000 रुपीज से मान लीजिए कि A ने बोला कि भाई मैं अभी 25,000 ही दे सकता हूँ, तो इसने पहले पेमेंट कर दिया 25,000 का इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए. अब जो बच्चे पे 25 के हैं उसके लिए हो सकता है कि जो A जो है वो बाकी का भी एंडोर्समेंट पार्शियल करे, यानी कि A ने पार्शियली एंडोर्स किया B को फॉर द 25 के. बट ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो पार्शियल इंस्ट्रूमेंट तभी होगा जब आपका पेमेंट कुछ मिल गया हो, तभी आप बचे हुए पैसे का आप पार्शियल एंडोर्समेंट कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं होगा एंडोर्समेंट. यस अभिजीत. मैम दूसरा इंडोर्समेंट बनाना पड़ेगा. आवाज नहीं आ रही आपकी, दूसरा इंडोर्समेंट बनाना पड़ेगा. हाँ. उसके लिए आपको नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. द फ्रेश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको दोनों के लिए बनाना पड़ेगा. लाइक आपने 50K के लिए बनाना था, लेकिन भाई B ने कहा कि भाई A ने कहा कि मैं बस 25,000 ही दे पाऊंगा अभी, तो फिर अब B क्या करे, मतलब A क्या करेगा, 25,000 का ही चेक जो है वो B को देगा. ठीक है. जब एक बार 25,000 का पेमेंट होगा तो बचे हुए 25,000 का फिर अगेन वो बना करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिर अगेन वो B को प्रोवाइड करेगा. लेकिन कभी भी आपने, हाँ फुल पेमेंट है आपका, जैसे 50,000 पेमेंट था, आपने फुल पेमेंट के लिए आपका पार्शियल कभी भी पेमेंट होगा नहीं. अगर आपने चेक 50,000 का बना के दोगे तभी ना 50,000 रुपया मिलेगा, 20,000 का बना के दोगे तो 20,000 मिलेगा. तो इन दैट सिचुएशन पार्शियल जो है वो इंस्ट्रूमेंट सब. लेकिन हाँ ये कभी नहीं होगा कि 50,000 का चेक और आप उसको कहो कि मुझे 25,000 ही रुपए ट्रांसफर हो. बैंक इज गोइंग टू ट्रांसफर द होल अमाउंट, दे आर नॉट गोइंग टू मेक द पार्शियल इन दैट कि 50,000 का चेक है 25,000 पेमेंट कर देता हूँ. दैट इज नॉट गोइंग टू बी डन. क्लियर है. तो पार्शियल एंडोर्समेंट कई बार हम कहते हैं कि दैट इज इलीगल, एक तरीके से वो इलीगल हो, मतलब दैट इज नॉट वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कभी भी 25,000 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आप 12,000 रुपया पैसा थोड़ी मिलेगा, पूरा 25,000 रुपया मिलेगा ना. तो आपको दोनों बार फ्रेश बना करके उनको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. जो पेयर है या तो उनको, या जो एंडोर्सर है अगर वो पे कर रहे हैं तो दैट पर्सन हैव टू मेक द पार्शियल पेमेंट का वो बनाना पड़ेगा उनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और एक बार पेमेंट अगर हो गया 25,000 का, तो बचा हुआ 25,000 फिर अगेन तब जाके आप दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोवाइड करोगे. क्लियर हुआ सबको, यहाँ पर समझ में आ गया. ओके. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चलिए सब सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो. टर्न ऑन योर कैमरा. लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, एवरीवन. ओके. सेंस रिकोर्स इंडोर्स मीन्स, इसका इंडोर्समेंट का मतलब क्या होगा. आई एम नॉट अफ्रेड. बी इट इज नॉट टू बी इंडोर्स्ड. सी आस्क द ड्रॉअर विदाउट लाइबिलिटी टू मी. सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट का मतलब क्या है. आई एम नॉट अफ्रेड, सेकंड, नॉट टू बी इंडोर्स्ड, आस्क द ड्रॉअर विदाउट लाइबिलिटी टू मी. यस अभिजीत. मैम not liable. Not liable, without liability to me. Yes, Priya. Ma'am, without liability. Rajvi. Ma'am, C without liability. C नहीं है, ask the drawer है C. D होगा without liability. Yes, ma'am. Okay. Next one is, which of the following will not deemed as restrictive endorsement. Next question में होगा, which of the following will not be deemed as a restrictive endorsement. ठीक है. तो pay A
pay A for my use, pay A or order for the account of B, pay the contents to C only. So what will be the answer? Which of the following will not deemed as a restrictive endorsement? कौन सा restrictive endorsement नहीं है? पहला है pay, दूसरा है pay A for my use, third है pay or order for my account of B, fourth है pay the content to C only. Yes, Abhijit? Ma'am, D1. क्या है आंसर? Ma'am, not content to C. Okay, Not- next Priya. Okay. मैम नॉट होगा रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, तो मैम उसमें पे ए होगा क्योंकि उसमें Okay, anyone else? Anyone else? The answer, yes, Rohit. मैम फर्स्ट होगा पे ए। The answer will be pay A. Why? Because other जो terms है जहाँ पर pay A for my use है, मैंने पहले बताया था restrictive का ये word है, use के जहाँ भी term use हो रहा है यहाँ पर pay A और order to account of B, यानी B के अकाउंट से सिर्फ A को पैसा जाएगा. It is also restrictive. Pay the content to C only. सिर्फ C को पैसा pay करना है. So these are the terms of the restrictive endorsement. The only one, pay A, is the only basically not deemed to be the restrictive endorsement, because pay A, pay C, pay B कुछ भी लिखा होगा तो that can be further endorsed. Okay. Next one is question 3. In which of the following cases the endorsement is valid? कौन से केस में होगा endorsement valid हो जाएगा? Endorsement valid कौन से situation में होगा? ध्यान से सुनिएगा, लंबे इसके कोई आंसर्स जो हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं, that is little bit I can say that is long. First one is if the instrument is payable to A and B and is endorsed by A only. So do you think that endorsement is valid? If the instrument is payable to A and B, ठीक है, and is endorsed A only. क्या लगता है endorsement ये होगा? जैसे No, विजीत, ma'am. No, ma'am. अगर इंडोर्समेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो पेएबल है ए को, तो ए को या फिर बी को, एंड इज इंडोर्स बाय ए ओनली, ठीक है, तो ये तो इनवैलिड हो गया. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इज फॉर ₹1000 बट इट बियर्स एन इंडोर्समेंट फॉर ₹500 ओनली, विथ द रिमार्क दैट 500 हैव ऑलरेडी बीन पेड. क्या लगता है ये इंडोर्समेंट वैलिड है? यस अभिजीत? Partial endorsement है तो. हाँ, क्या होगा, वैलिड होगा? Yes, ma'am. Very good. A check is payable to Rajiv Saxena but it bears the signature of R Saxena as endorser. Do you think that it is valid? नो मैम. No, ma'am. No, ma'am. A check is paid to Virender Prakash. Virender Prakash, P-A-R-K-A-S-H, Prakash, but it is endorsed by Virender Prakash. Do you think it is valid? No, ma'am. नो मैम. No, ma'am. When there is a wrong name, when the signature is not right, and when the जहाँ पे लिखा कि इंस्ट्रूमेंट जो है पेबल है ए को और बी को, लेकिन इंडोर्स सिर्फ ए करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा. द बोथ दोनों को इंडोर्स किया जा सकता है, ठीक है. तो इस सिचुएशन में ओनली बी जो होगा, ये सिर्फ आपका क्या होगा, एक आंसर होगा. दिस ऑप्शन इज ओनली करेक्ट. द इंस्ट्रूमेंट इज फॉर ₹1000 बट इट बियर्स एन एंडोर्समेंट ऑफ 500 ओनली, मतलब 1000 रुपए का था इंस्ट्रूमेंट जो था, वो इंस्ट्रूमेंट जो है 1000 रुपए के लिए है, लेकिन 500 रुपए आप इंडोर्स कर रहे हो और रिमार्क कर रहे हो कि 500 रुपए पहले से पेड है, ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन द इंस्ट्रूमेंट, बट इसमें चेक में ये चीज काम नहीं आएगा, याद रखिएगा. इट इज ओनली मे बी वैलिड फॉर द प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, क्लियर हो गया सबको? यस. Yes, ma'am. ओके. सो द नेक्स्ट जो टॉपिक है होल्डर, एक बार थोड़ा सा करवा रही हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिएगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, व्हाट इज दैट? वी ऑल दैट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द ओनली 3 थिंग्स व्हिच इज कंसिडर्ड, but traveler checks, demand draft, these are also an instrument which is used by the bank, ठीक है. But the 3 types which is mentioned in the negotiable instrument, that is check, bill of exchange and promissory note, ठीक है. So that is under the section 13 of the negotiable instrument act 1881.
Okay, so the next term is फीचर्स क्या है आपके negotiable instrument का? कोई मुझे बताएगा what are the features of negotiable instrument? Raise your hand. What is the feature of negotiable instrument? Yes, Abhijit. More than one party is involved, and it is partially endorsed also. Check is not partially endorsed. And Yes, Priya. also Good, it is Abhijit. safe also. Good. Priya. Ma'am, first it should be negotiable, and it must have the competent parties, and it is signed by the endorser or endorser, sorry, and Okay. Good. Yes, Rohit. Ma'am, first feature is easy transferable. Feature is must be in writing. Third is time of payment must be certain. Okay. Good. Next, Rajvi. Ma'am, it must be transferable. The amount should be specified. It must be signed by the maker. Okay. Okay, good. Chaliye, let me tell you the essential features of the negotiable instrument. Definitely, it required the parties at least. जो negotiable instrument है, that is easily transferred to one person to another person. ठीक है, the ownership of the instrument can be transferred. ठीक है, it can be passed by mere delivery. Even there is a bearer kind of things are also there in the negotiable instrument. Who have that instrument, they can receive the payment. ठीक है, and there can be the chance of the एक आप normal deliver भी कर सकते हो, यानी कि जैसे एक instrument मुझे मिला, मैंने deliver कर दिया, and I can endorse also. मतलब मैं उसमें नाम लिखकर endorse भी कर सकती हूँ. So this is one of the feature of the special feature of the negotiable instrument, and the second one is that the negotiable instrument confer the absolute and good title on the transferee who take it in the good faith. So एक कह सकते हैं कि जिसको भी transfer हो रहा है, that is basically passed with the case of the true, बोल सकते हैं कि एक faith वाली चीज होनी चाहिए when we are transferring the negotiable instrument, and it is basically transfer with the good intention. मतलब जो भी आप transfer कर रहे हो good intention से transfer कर रहे हो, कोई भी यहाँ पर कोई misuse नहीं कर रहे हो transferability of negotiable instrument को. ठीक है. So अगर कोई negotiable instrument जो है, अगर मैंने खुद से transfer किया, so I am just transferring it with the good faith, right? मैं भरोसे से transfer कर रही हूँ. But if someone stolen that negotiable instrument, अगर किसने चोरी कर लिया, so that is not the transferability of negotiable instrument with good faith. So negotiable instrument जब भी transfer होगा, वो आपके consent से, वो आपके good intention के साथ transfer होगा. Clear हो गई बात, समझ में आई है? So these are the special features of the negotiable instrument. Okay. So next one is types of negotiable instrument. I guess I already discussed negotiable instrument by statute, the statute, and the negotiable instrument by custom or users on exceptional cases of negotiable instrument. Anyone have any doubt in this topic? So negotiable instrument by statute क्या होता है? जहां पर negotiable instrument act जो है वो तीन ही instrument को state करता है कि that these are three instrument, that is check, bill of exchange, promissory note. As negotiable instrument जो ये इन सारे instrument को हम कहेंगे instrument by statute. Okay, अब next है negotiable instrument by custom और users. कुछ ऐसे भी instrument हैं जिनको हम negotiability के लिए use करते हैं, जो section 137 में इसको mention किया गया है, transfer of Section 137 of Transfer of Property Act 1882. It's not about Negotiable Instrument Act, but it is under the Transfer of Property Act 1882 में Section 137 में कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया गया, और उस इंस्ट्रूमेंट को भी हम निगोशिएट कर सकते हैं बाय लॉ और कस्टम. ठीक है. तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, इसको कहेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूजर्स. ठीक है.
एंड यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है आपके प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का, चेक का, बिकॉज इन द फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट क्लास में जो है, आप थोड़ा सा इधर, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे दैट विल बी अबाउट द इंटरनेशनल बेसिस, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और होल्डर इन ड्यू कोर्स वो थोड़ा सा बताना है, वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोमिसरी नोट क्या है, सबको क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज, Yes, ma'am. ओके, चेक, Yes, ma'am. MICR चेक ड्राफ्ट, MICR ma'am. चेक ड्राफ्ट, Yes, ma'am. okay. So distinction between the check, bill, exchange and promissory note is clear? Okay, what is Yes, the basic difference between check, bill of exchange and promissory note? Can anyone tell me that what is the basic difference? Ma'am, a stamp. Stamp. In check. Yes, ma'am. Anyone else? क्या बताना चाह रहे हो स्टैम्प में, अभिजीत बताओ? Ma'am, check में check have no stamp, but bill of exchange and promissory note have a stamp. हाँ वो तो ठीक है, उसके अलावा जो एक मेन डिफरेंस जो मैंने बताया था क्लास में, इट्स अबाउट द क्रेडिटर एंड डेटर। Yes, Priya? Yes, ma'am. Ma'am, actually, promissory note is made by the pay who should have to make the payment, but the bill of exchange and the check is made by the creditor. हाँ, क्रेडिटर। जो चेक होता है, चेक check is also made by the Later. pay, na? Yes, ma'am. Check is also made by the pay, na? The bill of exchange is only the difference, right? So promissory note is always made by the pay. यानी कि जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए का उधार लिया, I am taking a credit of 10,000 rupees from B, then I am liable to make the payment to B. So in that situation, I am liable to make the promissory note. So that is in the case promissory note में the pay, the person who have to make the payment, the debtor have to make the promissory note. In the second situation, bill of exchange, the person who has to take money, it means the creditor. If B has given me the anything like 10,000 rupees, उन्होंने मुझे loan दिया, so that person I have to make the payment to that B. Now B is making the bill of exchange, right? But in the third situation, that is check, the same situation is like a promissory note, that the pay जो person है जिसको payment करना है, जैसे example मुझे payment करना है, ठीक है, I am the payer and the person is the pay, I am going to make the check. यानी जो डेटर होगा वो चेक बनाएगा क्रेडिटर के लिए। promissory note में भी वही सेम चीज होगा, the debtor is going to make promissory note for the creditor, but in the bill of exchange, debtor is going to make the bill of exchange for the debtor. आई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, पेबल टू ऑर्डर एंड पे टू बियरर में क्या डिफरेंस है? मैम, पेबल टू ऑर्डर में जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में जाता है, और पेबल टू बियरर मतलब मैम अगर वो इंस्ट्रूमेंट किसी के भी हाथ में गया और कोई भी वो अगर जाकर मतलब मैम इन कैश करवा रहा है तो उसको पेमेंट मिल जाएगा। The difference between the payable to order and payable to bearer is बहुत easy है ये सभी चीज। मैम, और पेएबल टू ऑर्डर मतलब जिसको हम बोलें कि उसको देना है, वेरी गुड, उसको पेमेंट होगा, और Very good, बियर very good. मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसे ही पेमेंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बिल्कुल सही बोला अभिजीत ने। पेबल टू ऑर्डर का सिचुएशन ये होगा बच्चे, यहाँ पर प्रिया ध्यान दीजिएगा इस पे, कि जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या जो चेक है जो पेबल होगा ऑर्डर से, वहां वर्ड्स जो है वो एक्सप्रेस होंगे दैट कि पे टू ए, पे टू रामलाल, जैसे यहाँ लिखा है। सो दैट इज ऑर्डर टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको पे करो, तो दैट इज टू ऑर्डर वाला सिचुएशन, ठीक है। बट इन द केस अगर जैसे मान लीजिए चेक है, चेक हमारा कोई बियरर चेक है तो उसको हम ऑर्डर चेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पीछे लिख देंगे पे टू प्रिया, ठीक है, तो दैट चेक इज गोइंग टू पे टू प्रिया ओनली, नो अदर पर्सन, so that is to order.
बट इन सिचुएशन अब प्रिया चाहे तो उसको अकाउंट में ले, प्रिया चाहे तो उसको पैसे ऐसे ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन द पेमेंट इज ओनली मेड टू प्रिया, ठीक है. बट इन द केस ऑफ द पेबल टू बियरर, इन दैट सिचुएशन देयर इज नो ऑर्डर दैट whom that amount is going to paid, बट जिसके पास भी वो आपका चेक मिलेगा, जैसे एग्जांपल में मेरे पास वो चेक है, तो आई कैन बेसिकली गेट द कैश बाय दैट बियरर चेक. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. आई एम जस्ट आस्किंग द स्मॉल थिंग्स बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि क्लियर है या नहीं है. ओके, सो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है. जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ट्रांसफरेबल टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफरेबल है, ठीक है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट विल एक्ट confers upon the people who acquire its bona fide and for the value the right to possess good title to the instrument. यानी कि any person can be hold it, but whoever the holder is, that is basically given by the endorser. मतलब जो भी person हो, उसने खुद से उस person को holder बनाया है negotiable instrument का. तो such person is called holder in due course. मतलब जैसे मान लीजिए A है और A के बाद उसको ट्रांसफर किया गया B को. अब ये जो कोर्स है फिर B जो है वो C को ट्रांसफर कर रहा है, तो A के पास से B के पास गया, B के पास से C के पास गया. दिस होल्डिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है. जब तक आपके पास एक तरीके से राइट है टाइटल का, and each and every person in the possession of check or bill cannot be its holder in due course and cannot claim the statutory protection granted by the act. तो हियर अगर मैं सिर्फ होल्डर की बात करूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स से पहले मैं होल्डर बता देती हूँ. होल्डर का मतलब क्या होगा? कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक किसी भी पर्सन के पास है, उसके नाम से और उसका पोजीशन है उस पे, तो दैट एंड वही पर्सन रिसीव करेगा और रिकवर करेगा अमाउंट को, तो दैट पर्सन इज नोन एज द होल्डर, ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर ड्यू इन कोर्स. So if the section 8 of the negotiable instrument 1881, what it is saying that the holder of the promissory note कौन होगा? जो होल्ड करेगा promissory note को, bill of exchange को, चेक को, मतलब होल्डर जो होगा वो. और means any person entitle his own name. जैसे मेरे पे अगर कोई चेक बना हुआ है तो I am the holder of that check, तो वो, और उसका पोजीशन भी उसी को मिला है, उसका पेमेंट भी वो पर्सन लेगा, रिकवर भी वही पर्सन करेगा, तो दैट इज नोन एज द होल्डर हु इज गोइंग टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी. लाइक ए ने बी को बी के नाम पे चेक बना के दिया, अब बी जो है दैट पर्सन इज द होल्डर ऑफ द चेक एंड ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू टेक द अमाउंट फ्रॉम द ए, ठीक है. सो दैट पर्सन इज नोन एज होल्डर. जो पर्सन जो होल्डर है, अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कब वो होल्डर होंगे? So there are some conditions which is given for the holder. He must be entitled to the possession of instrument in his name. मतलब इसमें B का नाम मेंशन है. अगर A ने B को ट्रांसफर किया है तो here the name of the B is mentioned in that. ठीक है, B का नाम जो होगा वो मेंशन होगा, लीगल टाइटल में उसी का नाम होगा. जो एक्चुअल पोजीशन होगा इंस्ट्रूमेंट का इज नॉट इसेंशियल. यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन होल्डर के पास लीगल राइट होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट को कैरी करने का, और उस इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम होना चाहिए. जैसे ए ने जब बी को दिया इंस्ट्रूमेंट, तो बी का उसमें प्रॉपरली नाम मेंशन है. तो जैसे एग्जाम्पल में, इफ अ पर्सन एक्वायर्स अ चेक और अ बिल बाय थेफ्ट, फ्रॉड और फॉर्ज एंडोर्समेंट और फाइंड इट्स लाइंग समवेयर, he does not acquire the name title though he is not the holder. So the holder is that person whose name is already given on that negotiable instrument. अगर मैंने आपको एग्जाम बहुत अच्छे समझो इसको, कि जैसे मान लीजिए कि A जो है वो B को चेक दिया, B का नाम मेंशन तो कर दिया, अब वो B का जो चेक है वो चोरी हो गया, या किसी ने जाली उसको बना लिया, उसको एडिट किया, कुछ भी किया अगर, तो that person is not the holder of that check. Why? Because यहाँ पर उसका टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो ही सकता है, क्योंकि उसका नाम वहां मेंशन नहीं है. So the person whose name is mentioned, whose title is, the possession is given to the person, that person is the holder of the negotiable instrument. So I guess this point is clear to all of you. ये condition clear हो गया सबको? This condition is clear that who Yes. can be the holder? जिसका नाम होगा पोजेशन के लिए, जो रिकवर करेगा, रिसीव करेगा पेमेंट, दैट पर्सन इज द होल्डर. इफ दैट बिल और कैन बी थेफ्ट, चोरी हो जाए, फ्रॉड हो, कुछ भी फॉर्ज एंडोर्समेंट हो, या कहीं भी इधर उधर मिले, लेकिन अगर उसमें आपका नाम नहीं है, तो यू आर नॉट द होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर हो गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
Next one is पानी दिया था क्या लाके? Okay. Next one is next condition क्या होगा? He must be entitled to receive or recover the amount from the parties concerned in his own name. ठीक है. For this purpose वो जो होल्डर होगा वो अपने डॉक्यूमेंट यूज कर सकता है. ठीक है. यहाँ पर जो पर्सन के पास वो होल्डर, जो पर्सन होल्ड करेगा उस चेक को, या जो भी होल्डर होगा उस पर्टिकुलर चेक का, वही पर्सन जो होगा वही रिसीव और रिकवर भी करेगा पैसे को. द नो अदर थर्ड पार्टी कैन बी टेक द अमाउंट, बिकॉज इन द केस ऑफ द बियरर एवन, इन द केस ऑफ द बियरर इंस्ट्रूमेंट कई बार ये हो जाता है कि बिना क्लेम के भी पैसे जो है, बिना नाम के भी चेक बन जाता है और बस पैसा लिखा होता है. तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप चाहें तो यू कैन बेसिकली आप अपने पार्टी को कह सकते हैं कि आपके नाम को मेंशन कर दे. ठीक है. तो बियरर चेक वाले सिचुएशन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वहां नाम ही नहीं लिखा होता है ना. तो दैट इज एक्सेप्शनल केस वी कैन से. But the person whose name is written over the instrument, that person is only liable for getting the amount, and the person who is holding and whose name is mentioned on the instrument, that person is the holder. Holder in due course, I will tell you about holder in due course. Holder in due course का मतलब बस ये समझिएगा कि जो लोगों का नाम ना हो लेकिन that they are holding for some while or some time, they are basically holder in due course. या फिर एक होता है कि जब आपको पेमेंट नहीं मिला है तब तक अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हैं तो दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. बट आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. ठीक है. होल्डर इन ड्यू कोर्स. बट होल्डर इज क्लियर. कौन होगा होल्डर? होल्डर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Holder is clear? Priya, Rohit, Rajvi, Utsav? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so from the holder and holder due in court, I am going to start the next. हम लोग start करेंगे और question papers discussion भी करना शुरू करना है. But international base से एक बार complete हो जाए, then we'll do it. Okay, so see you all in the next class. Anyone have any doubt? No. No, ma'am. Okay. See you all in the next class. Anyone have any doubt in the endorsement or any of the topic? You can ask me. ठीक है, आप पूछ लें. Okay.